ولا جنون مندود فتر الخالق بقدرته ونشرت برحمته الصلاة والسلام يا رسول المصدق وأهل البيت عليه الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خصوصا على ميلاد النبي وأحمد المجتبى محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وخصوصا على ميلاد النبي سيدة النساء العالمين شباب أهل الجنة سيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها أجمعين خصوصا على ميلاد النبي وإمام المقيم سيدنا غوث الأعظم رحمة الله عليه ورضي الله تعالى عنه خصوصا على ميلاد النبي وپیر و مرشد سید اشرار رشد علی القادری الجیلانی والمقدادی الحسنی والحسینی رحمة الله عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله إنما يريد الله لينزل عنكم الرزق أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله عليكم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحبيب القرآن الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ये जो माइक है ना यहाँ पे आम को ला के दे दीजिएगा। सबसे पहले आप मुझसे माइक निकाल दीजिए। बोला यहाँ तो वायर है, हाँ वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक खूबसूरत सा शेर में सैयदुल निसाए आलमीन के लिए मैं पेश नज़र करना चाहूँगी अगर आप लोगों की इजाज़त होगी। क्या पेश खुदा साहिबे तौक़ीर है ज़हरा, क्या पेश खुदा साहिबे तौक़ीर है ज़हरा, उम्मुल हसन वो मादर शबीर है ज़हरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मादर शबीर है ज़हरा, खातूने जना मालिके तत्हीर है ज़हरा। सुभान अल्लाह। खातूने जना मालिके तत्हीर है ज़हरा, सरताबे कदम नूर की तस्वीर है ज़हरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शेर मुझे बहुत ही पसंदीदा है, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने पेश नज़र कर दिया। अब मैं जिक्र में शुरू करना चाहूँगी, उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आज 20 जमात निसानी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व अजमईन की नुज़ूल पाक की मिलाद शरीफ रखी गई है। आप तमाम हज़रात को मैं आप लोग अपने अपने कीमती वक्त क्या करें और उससे ज़्यादा आप ही को बोलते उस माइक में पढ़ने के लिए, वो माइक हम आपके लिए लेके आते हैं। कैसे बोले जो माँ फाउंडेशन के जितने सारे मेंबरान हैं, कमेटी हज़रात के जितने मौजूद हैं, मोहतरम हज़रात, मैं उनका नाम तो मुझे ठीक से याद नहीं है, मैं माज़रत चाहूँगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह देना चाहती हूँ कि माफ कमेटी के तमाम मेंबरान को मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पर दावत दी, हक की दावत दी और मुझे यहाँ पर आप लोगों के सामने तहरीम बनाकर यहाँ पर मुझे तशरीफ़ लाया गया, इसीलिए मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और आप तमामी हज़रात को सैयदुल निसाए आलमीन सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व अजमईन की नुज़ूल पाक बहुत बहुत मुबारक हो। आज इस ज़िक्र अज़म मिलादुन नबी मिलाद महफिल के आवाज़ में आप तमामी हज़रात जितने भी मेरी बहनें आंटी जी ने बहुत खूबसूरत सबने कलाम पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि तमाम ख़वातीन हज़रात यहाँ मौजूद हैं। देखिए कुछ अगर प्रोग्राम होता है, कुछ भी फंक्शन होता है तो लोग दौड़े चले आते हैं और ये भी कहते हैं, बुरा मत मानिएगा, ये भी कहते हैं कि भाई हमें क्यों नहीं बुलाया।
لیکن اگر محفل میلاد رکھی جاتی ہے چاہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا فاطمہ الزہرا کے لیے امام حسن اور حسین کے لیے پنجتن پاک کے لیے تو کئی لوگ جو ہے بہانے دیتے ہیں یا پھر واقعی انہیں کام ہوتا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ کہیں سے بھی اگر آپ کا ذکر کے لیے اگر بلاوا ہے، دعوت دی جائے تو آپ سارے کام کو چھوڑ کر فوراً آ جائیں۔ بے شک بے شک یہ ایک عبادت ہے بے شک، اور یہ عبادت تعظیم ہے۔ عبادت توحید تو ہم بے شک اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ عبادت تعظیم ہمارے اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے۔ میں کچھ واقعات شروع کرنے سے پہلے کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں سنیے نا بابو، اور میری بھی آپ تمام نظر سے کہتے ہیں چاہ رہی ہوں کہ آپ تمام نظر موجود ہیں تو ہماری شہزادی یہاں لانے کی کوشش کیجیے، تھوڑا ہم کو بولنا بھی ہے، توجہ بھی اور نعرے بھی، تو اگر وہ کھڑا ہو سے پہلے دیکھو نا بولا نکلے گا نا وائر نہیں ہے بھائی وہ کنیکٹڈ ہے نا، اس لیے تو ہم لوگ پورا مائک کر پائے ہیں نا، تھوڑا خاموشی اختیار کریں۔ آپ کو وہاں کھڑا ہونا، ایک بار آپ سب پھر ہم یہاں سے لائے پکڑ ہے آپ کو نعرے لگا کے نہیں نہیں اللہ اللہ اس کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب کچھ نا انکل سے اگر مائک ہو جائے گا تو ابھی پھر مائک نہیں ہو پائے گا۔ ہے ادھر جگہ بہت ہے۔ میں قرآن کریم سے آیت سے میں شروع کرتی ہوں، اس کے بعد میں واقعات کی طرف آؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میں تفصیلات جاؤں گی، اس کا ترجمہ بھی کروں گی۔ اللہ نے قرآن کریم کی یہ آیت اتاری جس میں ارشاد بولا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے میری تمام امتیں، رسول اللہ فرمایا کہ اے میری تمام امتیں، اللہ نے ایک بہت ہی خوبصورت سی آیت اتاری ہے اور فرمایا ہے میری تمام امتوں سے۔ اللہ فرما رہا ہے، میں ترجمہ کرتی ہوں، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، اے میرے پیارے بندوں، میں تم سب پر ایک ایسا نمونہ عمل کے ساتھ اتار رہا ہوں۔ ولادت نہیں کر رہا جی، پیدائش نہیں کر رہا، اتار رہا ہوں تاکہ جب تم اپنے نبی کو دیکھو تو ان کی سیرت اختیار کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورت نہیں کہا، توجہ، سورت نہیں کہا، سیرت کہا ہے کہ اے تمام جہان کے لوگوں، تمام دنیا کے لوگوں، تمام اولاد آدم، تمام تر لوگ، تم لوگوں میں میرا حبیب اسوہ حسنہ قرار دیتا ہوں میں تم لوگوں کو۔ سبحان اللہ۔ اسوہ حسنہ اسے کہتے ہیں، آپ الفاظ میں آئیڈل، اپنا آئیڈل بنا لیجیے اور ان کی سیرت اپنائیے۔ آگے بڑھیے نا، بیچ میں اتنا جگہ خالی، تفسیر کرتی ہوں، تفسیر یہ ہے توجہ کے ساتھ تھوڑا توجہ دیجیے۔ میرے نبی جیسا کہیں ویسا کریں، جیسا ان کے اقوال کہیں، جیسے وہ کہیں، ان پر عمل کرو، جس چیز سے وہ منع کر دیں، ممنوع ہو جائے، قطع نہ کرو، اور جس چیز سے تمہیں پرہیز کرنے کو کہا جائے اس چیز سے پرہیز کرو، شر سے بچو، خیر کی طرف جاؤ۔ سبحان اللہ۔ میں نے یہ آیت کیوں پڑھی؟ آپ لوگ کہیں خوابوں کی جہاد کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہ آیت آپ نے رسول اللہ کے لیے پڑھی۔ میں پھر آگے بڑھتی ہوں، دیکھیے میں صرف علمی ہی گفتگو کرتی ہوں، علمی ہی ذکر کرتی ہوں، ادھر ادھر کی کوئی باتیں نہیں کرتی، آپ بہتر جانتے ہیں جی۔ بہرحال ایک بار ہم لوگ دودھ پاک پڑھ اللہ علیہ وسلم۔
غدیر خون کی منزلت پہ, جی ہم سب کو یاد ہے نا, غدیر خون کی منزلت پہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضعفا کی منزلت پہ پالان شکر کی منبر پر 3 گھنٹے تک تمام 1.25 حاجیوں کے درمیان 1.25 صحابہ کرام کے درمیان انہوں نے 3 گھنٹے کا خطبہ ارشاد فرمایا, اور اس خطبے میں مولا کائنات کی فضیلت پڑھی. سبحان اللہ. اور انہوں نے کیا کہا تھا, اے لوگوں کیا کہا تھا, ہے نا, مذکور جو مولا فخاز علی, یہ مولا کہ میں جس لوگوں کا مولا ہوں, اے علی تو تمام لوگوں کا مولا ہے. سبحان اللہ. میں جو بات بتانے والی ہوں, رسول اللہ نے کیا کہا, انی تاریکم فی مفرتم فیکم مستقلین کتاب اللہ والترتیب بیتی, کہ اے لوگ اب یہ حجت الوداع کا وقت ہے, یہ آخری وقت ہے میرے لیے, اب اس کے بعد تم تمام لوگوں سے اب ملاقات ہونی ہوگی تو روز محشر ہوگی. اس لیے میں تم سب کے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, یاد رکھنا, انہیں مضبوطی سے تھام لینا. ایک, اللہ کی کتاب قرآن کریم, سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری فطرت, میرے اہل بیت, میرے گھر والے, میرے آل و اولاد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اشارہ سمجھ جائیں, پنجدن پاک. بے شک بے شک. اہل بیت. آپ کو اپنا اہل بیت بنایا. بے شک بے شک. میں واقعی کی طرف آؤں گی, لیکن میں جو بتانا چاہتی ہوں وہ میں بتا رہی ہوں. رسول اللہ نے 2 بھاری چیزیں چھوڑی اور کہا اسے مضبوطی سے تھام لینا. اگر تم ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اگر چھوڑتے ہو تو یا تو گمراہ ہو جاؤ گے یا تو کفر کی طرف چلے جاؤ گے, کافر نہیں. ایسا ہی ہے نا, کچھ غلط تو نہیں پڑھ رہی. رسول اللہ نے کہہ دیا 2 بھاری چیزیں. اللہ نے فرما دیا یہ 2 چیزیں تم پر فرض ہوتی ہے, لیکن جو واجب ہے وہ فاطمہ الزہرا کی سیرت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فاطمہ الزہرا جو تمہیں کہتے خواتین حضرات میں, آج خدا بند متعال نے ہم سب پر فاطمہ الزہرا کی سیرت کو مسلط کر رکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہہ دیا ہے تمام خواتین کو, تمام جتنے بھی اس دنیا میں جتنی بھی عورتیں ہیں, مستورات ہیں, ان سب میں اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یاد رکھنا, جو فاطمہ کی طرف ہو گیا فاطمہ الزہرا انہیں اپنا لیتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ فرماتے تھے کوئی بھی خاتون ان کے پاس اگر آتی تھی تو وہ کہتے تھے میری سیدہ کے گھر جاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنی حاجت لے کر سبحان اللہ. سبحان اپنے یہاں پر جملے پیش کروں اگر آپ لوگوں کی اجازت ہے. بے شک بے شک بے شک. رسول اللہ تو موجود ہے نا, بے شک ہے. رسول اللہ موجود ہے, لیکن وہ پھر بھی فاطمہ کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مستورات کی سردارہ سیدی شبابی اہل الجنہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. غوث کا دامن, خواجہ کا دامن. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. سیدہ کی آمد مرحبا کہہ دے جائے, سیدہ کی آمد مرحبا. 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 مرحبا یا مصطفیٰ. درود پاک پڑھ لے, اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تمام مستورات خواتین فاطمہ الزہرا کو
हम पर इस तरह से मुसल्लत किया गया, यूं कहूँ फर्ज, वाजिब, सुन्नत अदा कर दिया गया और कहा गया कि तुम्हें फातिमा ज़हरा की तरफ आना, क्योंकि ये वही खातून है जो कल रोज़े महशर हमें इनके सामने ही झुकना है, इनके सामने ही गर्दनी करनी है। मैं जुमले पेश कर दूं अगर आप लोगों की इजाजत है। हम कहते हैं ना कि हमारी माओ के कदमों के नीचे जन्नत है। बेशक बेशक ऐसा ही बात है। हमारी कुरान भी यही कहता है कि हमारी माओ के, तुम्हारी माओ के कदमों के तले जन्नत है। लेकिन अगर फातिमा ज़हरा जन्नत की सरदारा ना होती तो आज पूरी दुनिया में, पूरी आलमीन में किसी भी माओ के नीचे जन्नत ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हम कभी ख्याल कयास भी नहीं कर सकते कि फातिमा ज़हरा के बगैर अपनी जिंदगानी गुजार सके। बेशक बेशक। हम पर हमेशा मुसीबत आती है, हमेशा मुश्किलात आते हैं, लेकिन हम हमेशा यही कहते हैं अल्लाह है, टाल देते हैं, अहले बैत है, संभाल लेते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान रसूल आज़म है, थाम लेते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा ज़हरा है जो अपनी चादरों में हमें समा लेती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज उसी खातूने जन्नत शबाब यहल जन्नत सय्यदतुन निसाइल आलमीन सय्यदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नुज़ूल पाक के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा बैठे हैं। छोटी सी नसीहत करना चाहूँगी, बस आप लोग अपने ऊपर उसे मुसल्लत कर ले ताकि हमारी और आपकी तमाम ख़वातीन हज़रात की, तमाम औरतों की जिंदगानी गुजारने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए थोड़ी आसानी हो। रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि या अल्लाह मुझे ये ऐशो आराम की जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे ये हीरे जवाहरात, अशरफियाँ, सोने चांदी कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे वैसी जिंदगी पसंद है जैसे मेरी गरीब से गरीब से गरीब से गरीब उम्मत गुजारती है। जब ये बात, ये दुआ फातिमा ज़हरा ने सुना, अल्लाह अकबर, जब उन्होंने सुना, उन्होंने फरमाया कि बाबा जान इस दुआ में एक दुआ और भी शामिल कर लें। हाय क्या कहने, एक दुआ और भी शामिल कर ले और कह दे कि जो कोई भी खातून जो मसलात होंगी, मेरी मानने वाली होंगी, उनसे ये कह दे, हुक्म ना दे, बस ये कह दे उनकी मोहब्बत में हमें पर्दगी करनी है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। वालों के लिए सर पे चादरें होनी चाहिए और उनकी ये दुआ थी। अब देखिए कोई भी फातिमा ज़हरा को मानता होगा बगैर हिजाब के, बगैर नकाब के, बगैर रिदा के नहीं रह सकता, क्योंकि ये वो घराना है जो सबसे पहले हमें पर्दा करना सिखाया। कुरान की आयत भी नहीं उतरी जी, कुरान की आयत भी नहीं उतरी कि पर्दा हर मुसलमान ख़वातीन हज़रात पर फर्ज है। और गौसुल आज़म की क्या कहने, मेरे गौसुल आज़म ने इरशाद फरमाया है कि मुझे वो ख़वातीन, वो बच्चियाँ, वो औरतें, वो मस्तूरात मुझे बहुत पसंद है जो पर्दा करती हैं। सुभान अल्लाह। जो मेरी दादी अम्मा के नक्शे कदम पर चलती हैं, उनकी सीरत को अपनाती हैं। और अगर गुरबाए तक गुजरे, अगर वो किसी परेशानियों में पड़ जाए, परेशानियों में मुब्तला हो जाए, तो या फातिमा कहकर सब्र कर जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह से अपना सब्र का तकाजा करें, सुभान अल्लाह, सब्र का अज्र मांगे। इसीलिए उनका लक़ब भी है साबिरा। सुभान अल्लाह। ये यूं उनका लक़ब नहीं है ज़ाहिदा, मर्जिया, जी, आबिदा, ज़ाहिदा, साजिदा, सिद्दीका, बहुत बेशुमार उनके अल्क़ाब हैं, लेकिन वो यूं ही नहीं है। फातिमा ज़हरा ऐसी मस्तूरात, ऐसी हमारी सैयदा हैं जो खुद ना खाती हैं, दूसरों को जरूर खिलाती हैं, दूसरों को खिलाती। मैं वाकई की तरफ बढ़ूंगी और उससे पहले मैं यही नसीहत करना चाहूंगी कि हमें फातिमा
زہرا سے محبت کرنی ہے. یہ نہیں کہ میں چابک لے کر نہیں کھڑی ہوں, معذرت نہیں, محبت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کل اصلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, سورہ الشورى کی آیت ہے. آپ کو تحقیق کر سکتے ہیں, میں ہمیشہ اپنے ذکر میں بیان کرتی ہوں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے, کوئی اجر نہیں چاہیے, کہ ہیرے جواہرات یا اشرفیات سونے چاندی کچھ بھی نہیں چاہیے, مجھے چاہیے تو صرف ایک چیز, ایک اجرت. میں نے آج تک اپنے امتوں کو صرف دیا ہے, اللہ کی اللہیت میں نے دکھائی جی. میں نبوت میں نے لوگوں کو بانٹا کہ دیکھو میں نبی ہوں اور تم میرے امتی ہو, تمہیں میرا ہی کلمہ بولنا. سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. اور انہوں نے بتا دیا, ہمیشہ تو انہوں نے دیا ہی نہیں ہمیں جی, ہمیں اخلاق دیا, محبت دیا, ہمیں جو ہے حیوان سے انسان, انسان سے مسلمان اور مسلمان سے بس مومن بننے کی دیر ہے. الحمدللہ ہمیں سب سکھایا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. آج تک تو نبی نے سب دیا ہے, لیکن نبی مانگ رہے ایک چیز, کیا ہے؟ اجرت. کس چیز کی اجرت؟ مودۃ فی القربى, کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو. قرآن کیا ہے؟ ایک صحابی رسول اٹھے اور انہوں نے فرمایا من قرابتک فاولئک الذین وجبت الینا مودتکم, یا رسول اللہ جن کی باتیں کرتے ہیں کہ ان سے مودت کرو, ان سے مودت کرو, ان سے مودت کرو. میرا اشارہ ہے کافی. بے شک بے شک بے شک. کون ہے یہ آپ کے گھر والے, کون ہے یہ آپ کے اقربا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال علی الفاطمہ الحسن والحسین, کہ میرا بیٹا علی, میری لخت جگر بیٹی فاطمہ اور میرے دو بچے حسن اور حسین مل کر پنجتر ہوتے ہیں. نعرے حیدری, نعرے حیدری, آمد سیدہ, آمد سیدہ, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ الحمدللہ. چلیے میری محنت الحمدللہ میں سیدہ کی خادمہ ہو کر کہہ رہی ہوں کہ الحمدللہ آپ تمامی حضرات کو جو ہے اس مقامات پر فیضیاب رہے. الحمدللہ. ایک بار آپ سے درود پاک علیہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں ہاں چلیے. ختم ہو گیا, ایک تو ختم. ہمارے نبی نے فرما دیا کہ تمہیں مودت کرنی ہے تو ان پنجتر پاک سے. اہل بیت یہی میرے عام ہے, یہی میرے خاص ہے, یہی میرے سب کچھ. بے شک بے شک بے شک. اب ایک صحابی رسول پھر اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے محبت تو سنی ہے, قرآن کریم کی آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ انہوں نے فرمایا اللہ نے کہ میرے حبیب اپنے تمام امتوں سے فرما دیجئے, توجہ, اپنے تمام امتوں سے فرما دیجئے اگر یہ آپ سے محبت کرتے ہیں تو کہہ دیجئے اللہ بھی ان سے محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے نبی کے لیے ہے اور اہل بیت کے لیے کہا مودت فی القربى, مودت چاہیے, محبت نہیں. جہاں محبت ختم ہوتی ہے وہاں سے وہیں سے مودت کی شروعات ہوتی ہے. سبحان اللہ. بے شک. اور یہ ہمیں رسول اللہ نے بتا دیا. اب اس میں کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے کیونکہ میں نے قرآن سے پڑھا ہے. بے شک بے شک. کوئی فرقے کی بات نہیں ہے, میں نے قرآن سے پڑھا ہے. یہ احادیث سنت و جماعت کی بے شمار کتابوں میں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ علی علی کرنے سے یہ کیا ہوتا ہے, لیکن اہل بیت کو مانتے ہو کسی غیر مسلک سے ہو, لیکن الحمدللہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہماری پہچان ہے, مولائیوں کی پہچان ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. ہر مسلک کے پیچھے نہ جائیں, حق کی طرف جائیں. بے شک. اللہ نے فرمایا تھا نا مسجد نبوی کا واقعہ, چھوٹا سا واقعہ پیش کریں کہ سیدہ کائنات سے میں لوٹوں گی کہ مسجد نبوی کا واقعہ. ایک صحابی رسول کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ محاذا صراط المستقیم, یا رسول اللہ سچوں کا راستہ ہے,
सच्चों का रास्ता क्या है? आखिर सच्चों का रास्ता हमें पता है, सच्चों का रास्ता मतलब हमें पता है सिरातल मुस्तकीम का, लेकिन सच्चों का रास्ता टेबल वहाँ खाली आंटी वहाँ पे गई, हमको ये लाइफ सुने, तवज्जो चाहूंगी। उन्होंने फरमाया बैठ जाओ, सुने, उन्होंने फरमाया बैठ जाओ। फिर दूसरी दफा उठे, फिर उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सिरातल मुस्तकीम क्या है? तीसरी दफा, चौथी दफा, सातवीं मर्तबा हो गया। आखिर रसूलल्लाह ने खुद कहा कि अब पूछो जो पूछना है। मंजर कशी कुछ यूं है कि मौला कायनात दरवाजे से अंदर आ रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं। तवज्जो के साथ, तवज्जो दीजिए, थोड़ा तवज्जो। और वैसे ही कहा अब पूछो जो पूछना है। तब उन्होंने फरमाया या रसूलल्लाह मेरा सवाल तो वही है, महाअज़ा सिरातल मुस्तकीम के सिरातल मुस्तकीम कहा है, क्या है? क्या है आखिर? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक दिखने लगे, वो इतने चहकने लगे, इतने उनका चेहरा खिल गया मुस्कुराहट से, और उन्होंने फरमाया हाज़ा अलीयन सिरातल मुस्तकीम, कि देख लो मेरे अली को, वो है सच्चों का रास्ता। मौला अली सच्चों के रास्ते हैं, किसी मसलक की बात नहीं। अहले बैत सिद्दीका है, सच्चों के साथ हमें होना है, हमें हमेशा हुक्म दिया जाता है कि सच्चों के साथ हो जाए, और हम सच्चों के साथ ही हैं, सच्चों के मानने वाले ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वाक़े की तरफ आगे बढ़ती हूँ। एक बार तमामी हज़रात दूसरे बात को ले लाओ से ले लाओ। फातिमतुज़ ज़हरा की आमद कैसे हुई, एक खूबसूरत सा वाक़या मैं पेश नज़र कर दूँ, अगर आप लोगों की इजाज़त हो। बेशक बेशक। तवज्जो चाहूँगी आप तमामी हज़रात से, बड़ा ही दिलचस्प वाक़या है, सुन्नत वल जमात की मोतबर किताबों में आ चुका है, ख़ास तौर से सीरतुल बतूल सुन्नत वल जमात की मोतबर किताब में से है, उसमें यह वाक़या दरपेश है कि फातिमतुज़ ज़हरा के नूर के बारे में, अच्छा कोई शक और शुबा तो नहीं है ना कि अहले बैत नूर है? जी नूर है ना? बेशक बेशक। वही पूछ रही हूँ, कोई शक और शुबा तो नहीं, होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये नूर खुदाबंद ये मुतआल के नूर है, और एक नहीं, ये पूरी कायनात खल्क होने से पहले अल्लाह ने इन 5 की खिलकत पहले ही कर दी और उन्हें मकाम में रखा। कौन से मकाम में? मकाम आलीन में रखा। बेशक। सबसे पहले जिस नूर की खिलकत की है वो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं यूं ही कोई बात नहीं कहती, उन्होंने खुद फरमाया है अव्वल मा खलक़ नबीना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह ने सबसे पहले मुझ मोहम्मद के नूर की खिलकत की। मुझ मोहम्मद को खल्क नहीं किया, नूर की खिलकत की, जी नूर की खिलकत की, और उस एक नूर से 4 नूर और बने। बेशक 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 बेशक। और रसूलुल्लाह ने तो कही दिया था लौला मा खलक़तुल अफ़लाक, क्या मेरे हबीब मैं इस पूरी दुनिया को खल्क ही कर रहा हूँ आपके लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तमाम जहान को मैं खिलकत करूँगा, अगर आप ना होते तो मैं इस दुनिया को ना बनाती। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अगर फातिमतुज़ ज़हरा ना होती तो मैं अली को ना बनाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अगर खुद पर यतन ना होते तो मैं हजरत आदम को ना बनाता। सुभान अल्लाह क्या कहना। बेशक। हमारी सैयदा की आमद पर एक खूबसूरत सा वाक़या मैं पेश नज़र कर दूँ, क्योंकि ये हमारी जो सैयदा है ये नूर खुदाबंद ये मुतआल के नूर है, और खुद हदीस कुदसी में इरशाद होता है, उन्होंने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह फरमा रहे कि मैंने चाहा कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, इसलिए मैंने अपने नूर से एक नूर की खिलकत की।
कुंतो कंजर मक़ीला फ़ग़लक़तुम ख़लक़ा, कि मैंने चाहा, मैं छुपा हुआ खजाना हूँ। अल्लाह है ना खजाना छुपा हुआ। हम जानते हैं क्या कि अल्लाह कहाँ रहते हैं, कैसे नहीं जानते, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि मैं हर जगह मौजूद हूँ और मैं उन मोमिनों के दिल में हूँ। जी बहरहाल नूर खुदा बंदी मुतआल, नूर खुदा सैयदा फातिमा ज़हरा है, कोई शक व शुबा नहीं। और ये वो नूर है जो नबी के भी नूर है, और नबी के नूर फातिमा ज़हरा है, और फातिमा ज़हरा के दो नूर इमाम हसन और हुसैन। मैं इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि कोई ये ना समझे कि ये हमारे और आपके जैसे आम हैं। ये आम हो भी नहीं सकते, क्योंकि इनकी खिलकत उस तरह होती है जैसी हमारी और आपकी नहीं होती, बल्कि जैसा कुरान नाजिल होता है ठीक वैसे ही ये घराने की भी नुज़ूल पाक होती है। इसलिए हम कभी भी विलादत नहीं कहते, पैदाइश नहीं कहते। कई लोग मुझे कहते हैं कि नुज़ूल पाक तो कुरान के लिए होता है, नाजिल होता है ना कुरान, कुरान की आयतें नाजिल होती हैं। अब मैं क्या कहूँ ऐसे लोगों को कि जो खुद सरापा कुरान हो, जो कुरान की वारिसा हो, जो खुद चलता फिरता कुरान हो, बोलता कुरान हो, उनके लिए ये कुरान की छोटी अल्फाज, ये अलैहिस्सलाम भी सलामुल्लाह अलैहा भी छोटी अल्फाज हैं। बहरहाल एक बार आप सब मुझे पाक पढ़ लेना हमारी फातिमा ज़हरा जब दुनिया में तशरीफ लाई तो वो सैयदा माँ खदीजतुल कुबरा की गोद में, आंचल में समाई हुई। जैसा मैंने आप लोगों को पता होगा कि जब, अच्छा मैं बता दूं कि जब रसूल अल्लाह इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, बीबी आमिना के गोद में थे जी। और आपको पता है ना रसूल अल्लाह की नूर इतनी तेज होती है कि अगर वो कमरे में भी रहे तो दिया तो छूट जाएगा, लेकिन पता नहीं चलता कि कब कमरे में जो ये उजाले हैं ना, रोशनी, रसूल अल्लाह की नूर की रोशनी, पता नहीं चलता कि कब सुबह हुई, शाम हुई, रात हुई। बेशक बेशक। अब आप सोच लें कि नबी का नूर क्या था। अब उसी नबी के नूर जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, अब आप लोग सोचेंगे कि ये सैयदा की बात हो रही है, फिर नबी की बात क्यों हो रही है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे कहूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, हुम फातिमा बदतुम मिन्नी शजनतुम मिन्नी मुदतुम मिन्नी, कि फातिमा मेरे लफ्ते जिगर बेटी है, मेरी जिगर का टुकड़ा है, मेरा दिल है, मेरा कलेजा है। मेरी और फातिमा का ताल्लुकात ऐसा है, फातिमा मुझसे ऐसे जुड़ी हुई है जैसे एक दरख्त में आपने देखा मिसाल, दरख्त की शाखें जड़ से जुड़ी होती है, वैसे ही फातिमा मुझसे जुड़ी हुई है। तो ये कैसे मुमकिन हो जहाँ फातिमा की ज़हरा का जिक्र ना हो, नबी का जिक्र ना, जहाँ नबी का जिक्र ना हो, फातिमा की ज़हरा का जिक्र ना हो, तो हो ही नहीं सकता। बहरहाल जब रसूल अल्लाह इस दुनिया में तशरीफ लाए थे तो बीवी आमिना की गोद में थे, और बीवी आमिना ने चारों तरफ से उन्हें रैप कर रखा था चादर से। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये देखा तो कहा कि ये इस कपड़े से जरा हमारे बच्चे से ये नकाब तो हटा दे, है ना। बच्चे के जब कोई मासूम छोटा सा बच्चा होता है तो हम क्या कहते हैं कि भाई कपड़े हटा दो ताकि घुटन ना हो, सफोकेशन ना हो, यही कहते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने यही कहा, लेकिन बीवी आमिना फरमाती है कि मेरा बच्चा बड़ा पुरसुकून है, गोद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बड़ी पुरसुकून है, कोई तकल्लुफ की बात नहीं है। तो कहा लेकिन मुझे तकलीफ हो रही है। कहा कि आप क्यों नहीं हटाना चाहती। कहा कि मैं आपको वजह बताना नहीं, दिखाना चाहती हूँ। मेरा वाक़या लाइफ मैंने पढ़ा था, फिर से मैं बता देना चाह रही थी कि मैं रसूल, क्योंकि नूर खुदा की बात हो रही है, सैयदा पाक की बात हो रही है, नूर की बात हो रही है, इसीलिए। तो बीबी आमिना ने जैसे ही रसूल अल्लाह के चेहरे से सिर्फ नकाब हटाया, सुने, नकाब हटाया, सहर का वक्त था, सहर का वक्त था, रसूलुल्लाह की आमद थी, और जब जैसे ही हल्की सी सिर्फ
पर्दा हटाया रसूल अल्लाह के चेहरे अनवर से, इतनी तेज नूर की रोशनी हुई, इतनी तेज नूर की रोशनी हुई, इतनी तेज नूर की रोशनी हुई कि क्या शुमार, क्या जुनूब, क्या मशरिक, क्या मगरिब, चारों दिशा में रसूल अल्लाह का नूर फैल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, आका की आमद, ताहा की आमद, शोरे की आमद, रसपाल की आमद, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। ये तो मैंने रसूल अल्लाह के नूर की बात करी, मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये कह देना चाह रही हूँ कि हमारी अब सैयदा की बात में आती है। सैयदा का जब नुज़ूल पाक हुआ तो ठीक वैसे ही बीबी खदीजा की गोद में माँ ज़हरा बड़ी ही हसीन और जमील, बहुत ही खूबसूरत, शायद ये अल्फाज, ये लफ्ज़ भी कम है, कुछ भी नहीं, इतनी हसीन और जमील चेहरे वाली कि आज तक किसी ने उनके चेहरे अनवर को नहीं देखा, यहाँ तक कि उनके आवाज को भी नहीं सुना। सुभान अल्लाह। ये पर्दगी होती है, हमारा क्या पर्दा है जी, हमारा क्या हिजाब ओढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही बीबी खदीजा की गोद में सैयदा कायनात है तो रसूल अल्लाह तशरीफ लाए और उन्होंने कहा कि मुझे अपनी लफ्ते जिगर बेटी सैयदा की ज़ियारत करनी है। बड़े ही खुश हैं, उन्होंने कहा जी ठीक है। और उससे पहले उन्होंने कहा कि आप इस तरह से चारों तरफ से सैयदा कायनात को आपने उड़ा रखा है, समझ नहीं आ रहा है। वैसे तो रसूलुल्लाह सब जानते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह ने माँ खदीजा से पूछा ताकि ये तारीख में लिखी जा सके, अहादीसों में आ सके कि रसूलुल्लाह अपने से बनाकर कुछ नहीं कहते। कई लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह खुद से कहते हैं। बहरहाल तो उन्होंने कहा कि मैं अपने लफ्ती जिगर बेटी फातिमा की ज़ियारत करना चाहूँगी। उससे पहले माँ खदीजा ने पूछा कि फातिमा कौन? कहा कि मेरी शहजादी का नाम है फातिमा। कहा कि ये नाम आपने रखा है, बड़ा ही प्यारा खूबसूरत सा नाम है। कहा नहीं, ये मेरे अल्लाह ने भेजा है। सुभान अल्लाह। कहा है कि आपकी बेटी का नाम फातिमा है। क्यों? क्योंकि मैं फातिर हूँ और फातिमा अल्लाह के हिजाब का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान। फातिमा तो ज़हरा का एक लक़ब भी है, हिजाबुल्लाह, शायद आप लोग जानते होंगे, अल्लाह के हिजाब। अब कई लोग कहेंगे कि ये कैसी बात है, तो मैं नहीं कह रही, ये रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं क्या करूँ। बहरहाल तो जैसे ही शहजादी से हल्की सी पर्दे, हल्की सी नकाब हटाई माँ खदीजा ने, वैसे ही सैयदा का चेहरा मुरझा गया। सुने, तवज्जो। उन्होंने कहा कि क्या बात है, मेरी शहजादी मुझसे नाराज है या कुछ तकल्लुफ हो गई। कहा कि पता नहीं, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों है। कहा कोई बात नहीं, नकाब फिर डाल दो। जैसे ही नकाब डालने गई माँ खदीजतुल कुबरा जनाब ज़हरा की, फिर वैसे ही उनका चेहरा खिल गया। जब ये मंजर ये देखा रसूलुल्लाह ने, उन्होंने फरमाया एक बार फिर से नकाब हटाना। माँ खदीजा ने फिर वैसे ही किया। माँ ज़हरा का चेहरा फिर से, फिर तीसरी दफा ऐसा ही किया। और माँ खदीजा ने पूछा ये मुझे अमल समझ नहीं आया, इस तरह क्यों है। कहा कि लेकिन मुझे समझ आ गया, मुझे रहमतुल लिल आलमीन को ये समझ आ गया कि अभी से सैयदा कायनात बड़ी ही छोटी मासूम सी प्यारी सी है, हसीन और जमील माँ खदीजा की गोद में, और इन्हें अभी से पर्दा करना पसंद है। सुभान अल्लाह। नहीं चाहती कि कोई इनके चेहरे अनवर को देखे। सुभान नहीं अल्लाह। चाहती कि सिर्फ इनके बाबा और अम्मी जान के अलावा कोई ना देखे। जैसे रसूलुल्लाह ने कहा कि बाबा, जैसे कहा कि फातिमा मैं तुम्हारा बाबा हूँ, वैसे ही फातिमा को ज़हरा के चेहरे खिल गए, आंखें खुल गई और रसूलुल्लाह की ज़ियारत की और उनके लब और लहजे हिलने लगे। माँ खदीजा ने देखा सुना
तो पता ये चला कि रसूल अल्लाह के लिए वो दुरूद और सलाम भेज रहे हैं। सुभान अल्लाह, कौन है ये फातिमा ज़हरा? कौन है ये? आम तो हो नहीं सकती, इसीलिए वो मलिकाए सैयदा, मलिकाए शबाब अहल जन्नत, खातून जन्नत सैयदा है हमारी। हजरत वारिस अली शाह के छोटा सा वाक़या बता दूं। हजरत वारिस अली शाह जो रहमतुल्लाह अलैहा हैं, पीर हैं, वो वली हैं, उनके पास एक शख्स आया और कहने लगा कि मुझे जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा के बारे में कुछ आपसे गुफ्तगू करनी है, कुछ वाक़यात मुझे जानने हैं। हजरत वारिस अली शाह ने फरमाया ठहर जाओ। उठ के चले गए, फिर वापस आए और फिर उसके बाद सवाल और जवाब किया गया। फिर उन्होंने जवाब दिया उन्होंने, और जैसे ही आखिरकार उन्होंने पूछा, उनके खादिम थे कोई, उन्होंने पूछा कि क्या बात है? जब मैंने कहा कि आप फातिमा ज़हरा के बारे में बताएं, आप उठ के चले गए और फिर थोड़ी देर बाद आए। ये तरीका मुझे समझ नहीं आया। हजरत वारिस अली शाह ने इरशाद फरमाया है कि ये कैसे मुमकिन हो जो पाक को भी पाकीज़ा करे, वो इतनी बड़ी मुतहरात कायनात मलिकाए सैयदा है कि जिन मेरे लब पर अगर उनका नाम भी आए तो बगैर वजू के ना आए। सुभान अल्लाह, सुभान। वजू के ना आए, इसीलिए मैं वजू करने निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि मेरी दादी अम्मा फातिमा ज़हरा वो खातून जन्नत का लक़ब ने इसलिए भी दिया गया है कि आज और कल के मुआशरे में जितनी ख़वातीन हैं वो मर्दों से ज़्यादा गुमराह होती हैं। बुरा मत मानिएगा, ये उस वक्त की बात थी, ये उस वक्त की बात थी। निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया था, इसीलिए अल्लाह ने खातून जन्नत को बाकायदा तमाम औरतों पर फैज़याब किया और कहा कि कोई भी खातून, कोई भी मस्तूरात औलादे आदम माँ हव्वा की जितनी बेटियां हो वो कभी गुमराह ना हो। बेशक बेशक। अगर वो कभी गुमराहियत की तरफ चली जाए तो उन्हें फौरन याद आ जाए कि फातिमा ज़हरा की करनी थी। अगर कभी लड़खड़ा जाए उन्हें फौरन याद आ जाए कि मैं फातिमा ज़हरा की मानने वाली हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए जाने अनजाने में तो कल फातिमा ज़हरा के सामने मुझे खड़े होना है, मैं उन्हें क्या जवाब दूँ, कैसे खड़ी रहूँगी मैं? इसीलिए मैं भी यही कहती हूँ, अगर कोई मुझसे पूछते हैं लोग कि आपके आइडल कौन है, बेशक हमारे रसूलुल्लाह हैं, दूसरे मौलाए कायनात, और हमारी औरतों में सबसे ज़्यादा पहले अगर कोई है तो वो बेशक फातिमा ज़हरा है। एक बार दूसरे बात पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मैं वाकया में पेश नजर करना चाहूँगी, क्योंकि अब आज़ान भी की करना वक्त हो है, जाएगी। भी करना है। भोजन दीजिए। आखिरी वाकयात से पहले अभी तो जिक्र के मैं ये बीच में बता दूं ये मतलब रेस्ट नहीं ली कि फातिमा ज़हरा को कंटिन्यू कर दी है। अच्छा, उससे पहले ये बता दूं कि मैंने बीच पे होता है ना, पाएंगे ना बच्चा जब रसूलुल्लाह का नाम आया तो मैंने चुना, आप सब ने चुना, हम सब चुनते हैं तो ताज़ीम करते हैं जी। लेकिन जैसे ही फातिमा ज़हरा का नाम आता है तो हम सब भी चुनते हैं। कई लोगों को ये सवाल ही रहता है कि आपने रसूलुल्लाह के लिए तो चुना, हमें समझ आया, लेकिन खातून जन्नत के लिए क्यों चुना? वाकई की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही फातिमा ज़हरा जब जब रसूलुल्लाह के पास आती, पास तशरीफ लाती, रसूलुल्लाह अपने जगह से उठकर खड़े हो जाते। सुभान अल्लाह। जिनकी ताज़ीम पूरी कायनात करती है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा ज़हरा के आने पर खड़े हो जाते हैं और आगे जाकर फरमाते हैं, उनके कदमों को देखते हैं और फरमाते हैं कि तमाम माओं के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन तुम तमाम जन्नतों की औरतों की सरदार। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत खुशी होती है जब जब मैं तुम्हें तुम्हारे कदमों को देखता हूँ तो मुझे
ऐसा मालूम होता है कि ये पूरी कायनात आपके सामने झुकी हुई है, आपकी कदमों तले है। और आगे बढ़ते उनके दस्ते अदब का बोसा लेते और फरमाते फिदिया के अबी व उम्मी या फातिमा। सुभान हाथों को चूमते, बकायदा बोसा लेते जी, और फरमाते कि मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान जाए ऐ फातिमा ज़हरा। हम लोग जानते हैं ना कि हम लोग ये कहते हैं हमारी 70 नस्लें कुर्बान, 70 नस्लें कुर्बान फातिमा ज़हरा पे, रसूल अल्लाह पे। और हम यही कहते हैं फिदिया के अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह कि मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान जाए। लेकिन वो सरवरे आलम जी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान जाए ऐ सैयदा। और फातिमा की ज़हरा को उम्मे अबीहा कहकर पुकारते हैं। उम्मे अबीहा, उम्मे अबीहा का मतलब होता है नबी की अम्मी। शॉर्ट अल्फाज में, शॉर्ट लफ्ज में मैंने कह दिया कि जो नबी की माँ हो। और आप कहेंगे ये कैसी बातें हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस तरह से मेरी अम्मा सैयदा आमिना सल्लल्लाहु अलैहा मेरा ख्याल रखती हैं, मुझे शफ़क़त करती हैं, मेरी हर चीज़ के बारे में उन्हें पता होता है, ठीक वैसे ही मेरी अम्मा के जाने के बाद जिसने मेरा सबसे ज़्यादा ख्याल रखा है, एक तो वो मेरी ज़ौजा खदीजा सलाम, और दूसरी जिन्हें मैं अपनी माँ कहकर पुकारता हूँ वो फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह बेशक। इनका मुकाम एक छोटे से वाक़ये के साथ पेश नजर कर रही है। मस्जिद नबवी का वाक़या जी, मस्जिद नबवी। और उस जमाने में लोग रसूल अल्लाह को मोहम्मद कहकर पुकारते हैं। और जैसे ही अल्लाह ने देखा वैसे ही फौरन उन्होंने फरमाया, सूरह आले इमरान की आयत उतारी और फरमाया वमा मुहम्मद इल्ला रसूल, क्या मेरे हबीब अल्लाह बड़े जलाल में थे, ऐ मेरे हबीब फरमा दीजिए ये क्या लोगों ने मोहम्मद मोहम्मद लगा रखा है, कह दीजिए वमा मुहम्मद इल्ला रसूल, कि तुम्हारा मेरा मोहम्मद सिर्फ तुम्हारा रसूल है और इसके अलावा कुछ नहीं। आयत उतर गई जी, सब लोग अपने अपने घर को लौट गए। रसूलुल्लाह घर चले गए, कमरे में तशरीफ लाए। जैसे ही दरवाजा खुला, दस्तक दिया, दरवाजा खुला, सैयदा कायनात सामने खड़ी थी और उन्होंने फरमाया सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे नहीं पता आप लोग क्या सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता। उन्होंने फरमाया सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। जैसे ही फरमाना था रसूलुल्लाह ने चेहरे अंदर की तरफ देखा और कहा वालेकुम सलाम, अंदर तशरीफ ले गए। फिर उन्होंने फरमाया सैयदा कायनात है या रसूलुल्लाह मैंने आपके लिए नीम गर्म पानी तैयार कर रखा है, या रसूलुल्लाह मैंने आपके पसंदीदा पकवान तैयार कर रखे हैं, या रसूलुल्लाह हाथ मुंह बोले, या रसूलुल्लाह याद का लिबास, या रसूलुल्लाह वो करें वगैरह वगैरह। रसूलुल्लाह ने कहा पानी पी रहे थे, रख दिया। और जिस जगह वो बैठे थे उनकी खूबसूरत सी आदत थी खड़े होते और अपनी जगह बैठाते, अपनी जगह बैठा दिया, जगह बैठा दिया और कहा खुद पूछने के बल हो गए। ये अंदाज में बता रही हूँ कि सैयदा कायनात की ताज़ीम अगर पूरी कायनात में किसी ने की है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा क्या ताज़ीम करेंगे जी, हमारा क्या ताज़ीम करेंगे। ये रसूलुल्लाह ने दिखा दिया कि देख लो ताज़ीम ऐसे की जाती है। उन्होंने फरमाया कि तुम मुझे ही रसूलुल्लाह कहकर क्यों पुकार रही हो। उन्होंने फरमाया कि बाबा जान थोड़ी देर पहले मस्जिद नबवी में आप पर आयत उतरी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी में तो मौजूद नहीं, रसूलुल्लाह जानते हैं फिर भी पूछ रहे हैं और कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया उन्हें कैसे पता। अगर अज़ान हो तो मुझे क्या कर देना, आधे घंटे और प्रोग्राम चलेगा फिर खत्म हो जाएगी, खुदा हो जाएगी, कोई तकलीफ नहीं है। कितने घंटे पढ़ते हो?
آیت کو پڑھ رہی ہوں سنت و جماعت کی کتاب ہے. انہوں نے بتایا کہ میں آپ ہی کی بیٹی ہوں. اور دوسری روایت انہوں نے یہ کہا تفصیل کے ساتھ انہوں نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام جو سید الملائکہ ہیں جی اہل بیت اطہار اہل بیت کے در کے برابر ہیں خادم ہیں. آپ لوگ کہیں گے کیسے نازیبہ جملے یہ ذاکرہ کن کو بلا رہی ہے یہ نازیبہ جملے پیش کر رہے ہیں. نہیں یہ کوئی نازیبہ جملے نہیں ہے. میں بغیر دلیل کے دعویٰ نہیں کرتی. دعویٰ ہے ابھی دلیل ہوتی ہے. انہوں نے آپ درود تاج آپ نے پڑھا ہوگا جو سب سے اعلیٰ درود مانا جاتا ہے اور سب سے بڑا درود ہے درود تاج تمام درودوں میں. وہاں پر جبریل امین نے اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا ہے اور فرمایا ہے انا عاصمہ و جبریلہ و خادمہ کہ میں جبرائیل جو سید الملائکہ ہے تمام فرشتوں کا سردار ہے. میں سیدہ کے گھر کا فقیر ہوں سیدہ کے در کا غلام ہوں. کیا کہنے خادم ہو تو جبرائیل جیسی اور خادمہ ہو تو فضہ جیسی. بے شک بے شک. اور جب یہ انہوں نے کہا کہ آپ کی آیت اترنے سے پہلے جو جبریل امین ہے سید الملائکہ وہ میرے گھر آیا میرے در پہ کھڑا رہا مجھے سلام کیا اور پھر مجھ سے کہا اجازت طلب لیا کہ یہ آیت اللہ اتار رہے ہیں آپ کے بابا جان کی شان میں کیا میں یہ آیت لے کر چلا جاؤں. سبحان اللہ. جی سیدہ نے پوچھا کہ تم میرے یہاں کیوں آئے ہو ڈائریکٹ میرے بابا جان کے پاس جانا چاہیے. کہا نہیں یہ اللہ کا فرمان ہے کہ پہلے آپ کے پاس پہنچے آپ سے اجازت لے پھر رسول اللہ کے پاس جائیں. اگر آپ راضی ہیں تو اب آپ سوچ لیں کہ جس کی رضا میں جس کی راضی میں اللہ بھی رضا ہوتے ہیں جس کی رضا میں اللہ بھی راضی ہوتے ہیں وہ ہے فاطمہ الزہرا. سبحان اللہ. اس سے بڑی بات اور کیا ہے. چلیے ایک آخری واقعہ میں پیش نظر کر دوں جو میرا سب سے پسندیدہ واقعہ ہے اور میں چاہوں گی کہ آپ تمامی حضرات کے دل میں ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و اجمعین کی محبت اور جاگ اٹھے. آل ابا کا واقعہ جی آیت تطہیر کا واقعہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے. ایک بار آپ سب درود پاک پڑھ لیں. رسول اللہ سیدہ کے گھر اور انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ آج مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا. آج نبوت کو ذوق آئی ہے نبوت تھوڑے لڑکھڑا رہے نبوت کو ذوق آئی ہے مجھے نہیں. یاد رکھیے گا رسول اللہ کا کچھ نہیں ہوتا. ان پر تو مکھی بیٹھنا بھی حرام ہے پھر انہیں بخار اور یہ مرض کیسے پکڑ لے. جی انہوں نے فرمایا آج نبوت کو ذوق آئی ہے. فاطمہ الزہرا آئی اور کہا کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں. انہوں نے فرمایا کہ تمہاری ایک چادر ہے وہ چادریں مجھے اڑا دو. کیا کہنے وہ چادریں مجھے اڑا دو. جیسے انہوں نے اڑایا پھر انہوں نے پوچھا کہ اب آپ نے خود کو کیسا پایا. کہا بڑا پرسکون. سبحان اللہ. بڑا پرسکون. اب میں ایک جملہ کہوں اگر آپ لوگ کی اجازت ہے. کل روز محشر کی پنجتنی چادر ہے کیا کہنے پنجتنی چادر ہم تمام خواتین و مستورات کے لیے ہوں گی اور تمام مومنین و مومنات کے لیے ہوں گی. سبحان اللہ. اتنے نفسی کے عالم میں اتنی پریشانیوں کے عالم میں اگر ہمیں اس پنجتنی پاک چادر پاک بیوی کی چادر کا بس سایہ ہی نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. چاہے سایہ ہی نصیب ہو جائے. آمین سنو آمین. انہوں نے فرمایا کہ اب وہ اٹھ کے چلی گئی. ویسے ہی
थोड़ी देर में इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, दीन के बड़े इमाम आए और चारों तरफ उन्होंने ढूंढा, देखा, सूंघा, क्योंकि रसूल अल्लाह के जिस्म से ऐसी खुशबू आती थी जो मदीने की गलियों में 3 दिनों तक मौजूद है। सुभान अल्लाह। कहा कि अम्मा, जैसे आपके जिस्म मुतहरात से खुशबू आती है ठीक उसी तरह बाबा के भी जिस्म से आती है। क्या बाबा मौजूद है कमरे में? नाना मौजूद है? सॉरी, नाना मौजूद है? कहाँ? तुम्हारे नाना मौजूद है? कहाँ है मेरे नाना? कहाँ? उस तरफ, तवज्जो, उस तरफ। इमाम हसन चले गए, छोटे थे, बड़े ही प्यारे से थे, मासूम। फिर थोड़ी ही देर में सुल्तानुल करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम खेलते हुए आए और कहा, उन्होंने भी चारों तरफ ढूंढा, फिर सूंघा और कहा कि क्या नाना जान मौजूद हैं? कहा बेशक, आपके चेहरे खिल रहे हैं, इससे पता चलता है कि आप अकीदतमंद वाले और आप पंजतन पाक को कितनी मोहब्बत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत खुशी है, आज मुझे पहली बार इस जिक्र यहाँ पे आके जिक्र करके मुझे बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि आप लोग सब मौलाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल तो उन्होंने कहा कि उस तरफ है तुम्हारे नाना, चली गए, इमाम हुसैन भी चले गए। फिर थोड़ी देर बाद मौलाए कायनात मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उन्होंने फरमाया कि क्या नाना जान अंदर है? मुझे उनके जिस्म की खुशबू आ रही है और मुझे उनसे कुछ जरूरी बात भी करनी है, गुफ्तगू करनी है। कहा जी हाँ, आपके रसूल अल्लाह भी अंदर है, कमरे में मौजूद है और हमारे 2 बच्चे भी मौजूद हैं। कहा क्या बात है? चले गए। उससे पहले मैं यहाँ रुकूंगी, जब इमाम हसन जब कमरे में गए तो रसूल अल्लाह ने देखा, वल्लाह हसन, क्या बात है, तुम तो मेरी जान, आ जाओ। सुभान अल्लाह। उन्होंने देखा कि नाना जान आपने ये चादरें ओढ़ रखी है। कहा हाँ बेटा, तुम्हारी अम्मा की चादर है, सुने तुम्हारी अम्मा की चादर है। कहा क्या मैं इसमें आ जाऊँ? कहा पूछने की जरूरत क्या है, आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन जब आए तो उन्होंने देखा और कहा, वल्लाह हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है, मैं तुझसे। बेशक बेशक। फरमाया हुसैन तू भी आ जा चादर के अंदर। चादर के अंदर अब मौला कायनात जैसे गए तो देखा कि रसूल अल्लाह आप चादर के अंदर, बच्चे भी चादर के अंदर क्या कर रहे हैं? कहा तुम भी आ जाओ। जी सब आ गए, 4 हो गए ना। अब अल्लाह ने फरमाया जिब्रील अमीन से, अर्श की बात हो रही है, अल्लाह फरमा रहे जिब्रील अमीन से कि ऐ जिब्रील, तुम्हें एक आयत लेकर जानी है और वो ऐसी वैसी आयत नहीं, आले अबा की आयत है, आयत तत्हीर है। सुभान अल्लाह। आयत लेकर जानी है। अल्लाह अकबर। तो कहा ठीक है, मैं निकलता हूँ। जिब्रील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रुक जाओ, ठहर जाओ, कहाँ चले? कहा या अल्लाह, आपने तो हुक्म दिया कि आयत लेकर जाऊं, सूरह अल-अहज़ाब की आयत लेकर जाओ। कहा अभी मत जाओ, ठहर जाओ, जब मैं कहूँ तब जाना। क्या बात, क्या कहने, जब मैं कहूँ तब जाना। अब देखिए रसूल अल्लाह भी हैं, मौला कायनात भी हैं, इमाम हसन भी है, इमाम हुसैन भी। आयत तो वैसे भी उतर जानी थी, लेकिन अल्लाह इंतजार में, किसके इंतजार में है? सैयदा कायनात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा उससे पहले क्या मैं एक जुमले पेश कर दूं अगर आप लोग? बेशक बेशक। जो इमामों को रास्ता दिखाया, चलिए उससे पहले एक और मैं उससे बड़ा जुमला कह दूं कि रसूल अल्लाह ने तमाम अंबियों को रास्ता दिखाया है, तमाम अंबियाओं को। जी इसीलिए तो वो सरदार अंबिया हैं। जी इमामुल अंबिया भी हैं। जो अंबियाओं को रास्ता दिखाए उससे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी कोई शक कोई शुबा नहीं। लेकिन जिन्होंने मौलाए कायनात इमाम अली को रास्ता दिखाया, जिसने इमाम हसन को रास्ता दिखाया, जिसने इमाम हुसैन को रास्ता दिखाया, जो
नबियों को रास्ता दिखाए उसे रसूल कायनात कहते हैं, और जो इमामों को रास्ता दिखाए उसे सैयदा कायनात कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मरहबा या सैयदा, मरहबा या सैयदा। माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे आपको। जब सैयदा कमरे में दाखिल हुई तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि फातिमा, हम ये चार ना जिस चादर में है, तुम्हारी चादर में, यह आयत तखीर की चादर है और अभी आयत उतरनी है, थोड़ी देर बाकी है, तुम्हारे लिए ये आयत रखी हुई है, अल्लाह तुम्हारे इंतजार में है। अल्लाह किसके इंतजार में है? सैयदा कायनात के इंतजार में। और जिब्रील अमीन किसके इंतजार में है? अल्लाह के इंतजार में है कि कब अल्लाह कहे और कब आयत लेकर जाए। उन्होंने कहा कि हम पंजतन तुम्हारे बगैर अधूरे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख लो, फातिमा, ये फरमा दिया कि फातिमा के बगैर नबूवत अधूरी, रिसालत अधूरी, इमामत अधूरी। और उन्होंने कह दिया कि तुम मरकज़े अहले बैत हो, तुम भी चादर में आ जाओ। जैसे ही वो चादर में आ गए, मैंने बताया कि रसूलुल्लाह है नूर खुदा बंदी है, मुताल नूर खुदा है ये सब। अब सोचे जो रसूलुल्लाह का इतना नूर हो और जब 5 नूर इकट्ठा हो जाए, जब 5 नूर इकट्ठा हो जाए, वल्लाह क्या कहने, वो नूर की ऐसी तेज रोशनी निकली कि सीधे फर्श से लेकर अर्श पर टकराई। और मलिकाए मुकर्रबीन सैयदुल मलाइका थे, जिब्रील अमीन उनके चेहरे अनवर पे जाके तवज्जो वो नूर, और उन्होंने फरमाया या रब्बो मन तहतिल किसम, कि या अल्लाह चादर के अंदर कौन है। उन्होंने कहा चादर के अंदर कौन है, समझ नहीं आ रहा, इतनी तेज रोशनी है। अल्लाह ने फरमाया अब सुनो, तुम्हें ये आयत लेकर जानी है, और इतनी तेज ये आयत लेकर जाना, इतनी तेज ये आयत लेकर जाना कि जैसा तूने मुझ अलियों के कहने पर जंगे अहद में तूने अलीयुन के लिए तलवार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेज ये आयत लेकर जाना। जिब्रील अमीन जा रहे थे और कहा जिब्राइल ठहर जाओ। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल ठहर जाओ। कहा या अल्लाह, अब आप फरमाइए क्या बात है। कहा सुनते तो जाओ, तुमने सवाल किया है ना, या रब्बो मन तहतिल किसा, के चादर के अंदर कौन है या अल्लाह, तो सुन लो। तवज्जो चाहूंगी, चादर के अंदर कौन है, अल्लाह अकबर जरूर कहिएगा। उन्होंने कहा चादर के अंदर कौन है, तो अल्लाह ने फरमाया हुम फातिमा वो अबूहा, हुम फातिमा वो बनुहा, हुम फातिमा वो बालुहा। उन्होंने फरमाया कि एक फातिमा है, एक फातिमा का बाबा है, एक फातिमा है, फातिमा का शौहर है, एक फातिमा है, फातिमा के 2 बच्चे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हम सब नहीं एक जुमले पेश करूं अगर आप लोग की इजाजत। बेशक बेशक बेशक। रसूलुल्लाह मौजूद हैं, अज़ान हो गई हो चुकी है, टाइम तो हो चुका टाइम हो रहा 5:15 हो रहा बैठी 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 जा रही अप्पी के पास।
ब्रॉडकास्ट क्यों कर रहे